मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, इसकी पूजा करता हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी खाली और जितनी ही विषमताएं हैं, जितनी नेगेटिविटी आज हमारे जीवन में है, समाज में है, मेरा ये मानना है कि हम सब जानते हैं कि सत्य कहीं ना कहीं है, जरूर रोशनी है उस टनल के उस पार, और उसी सहारे उसी भरोसे हम बढ़ते रहते हैं, जीते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। तो वो तो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि सत्य है और सत्य की विजय होगी, ऐसा हमें विश्वास है। We must congratulate you for this. Do you think this is a big win for you all, Sanankita? Yes, it's a very, very big win, and I feel very vindicated and very validated, because I think the exact reason why we were opposing the CBFC decision, because we really did feel that they did not understand the film, or they chose to not understand it. I think the FCAT has completely called the CBFC out on its decision and ruled in our favor. And I feel it's not just a win for me, I feel it's a win for all the women of India who I felt like I was fighting not just for lipstick on my burqa and for myself, but I really felt that it was such an important thing that women's voices should not and cannot be silenced, and women's stories need to be told. And I'm very, very happy, and I really feel that we got so much support from so many women across the country, and so many men, of course. But that I think it's a win for everybody, and it's a win for women and for the freedom of expression. Sir, Well, frankly speaking, it is common sense. When I first read the CBFC decision, their wordings and the way they had seen the film, I really laughed. In fact, the last time also when we were talking, I mean, I felt, in Hindi there is a word called hasyaspad. It is ridiculous. Like, how can you interpret a story like this? We all know that in our society, and not in only our society, I think in every society, we have now taken it for granted that women will have to kind of like look, behave, think, dream in a particular way which is entirely male thought oriented, male oriented, simple. They will be part of our life, but just as we want them to be. That women cannot think, cannot aspire, cannot think about their career, cannot dream, cannot talk about their sexuality, their satisfaction. That has been kind of like, a well understood norm. Here was this story, such a lovely little story where four women, in a very normal conversation, very funny kind of anecdote, were talking about their dreams, were talking about their feelings, about their bodies, about their sexualities, about their career, about their aspirations. And what happens? Like a male gazing, mind oriented CBFC gets scared about it. How can women talk about themselves? How can they think? So I was very, very confident that if we present it properly, and if there is a set of people who look at it from a very rational point of view, and that's exactly what, I mean, if you read this FCAT kind of like order, it talks about the relevance and importance of the film. And nothing from the film has been, asked to be deleted, except some 10 seconds here or a 10 seconds there, and a word or two over here. That also, I think, because, they have the system and the power of kind of like, asking you to delete a particular thing. Otherwise, I think it's a completely reverse decision of CBFC observation. And and one is happy about it, and one is confident that you can
talk, you can speak, and you can make such films. And the best part of it is that for the reason that Alankrita made this film, that is already being discussed so widely. So how does FCAT's intervention reflect on CBFC's agency? Well, I wish I had any kind of authority or mastership on that particular thing. I don't know if it will reflect somewhere. In our film, it definitely has reflected. They are already on the defensive. Well, if muting 2 cuss words changes the story of the film, what is the point in making a film? One can just have 2 cuss words and release them. Na? So none of the scenes had... No, I don't think there is no change. But I must say, and you please tell them whether I gave you the liberty of taking a call on this or not. Yeah. So of course, I feel in an ideal scenario, one would want that a film gets certified without any kind of cuts or any sort of being asked to mute any kind of word. But this is India, and I think we are facing a situation where we were refused certification altogether. And I must say that I found the attitude of the FCAT. I felt that they were very open, and they completely understood the purpose of the film, the intent of the film. They identified with the characters, so I never felt that they were not getting the film. And so then when they have asked us to sort of trim down a few scenes where basically we're just cutting out some seconds of some intimacy. Of course, as a filmmaker, I believe that one should never have to go through this process, and there should be just a system of certification, and this entire drama is actually pretty pointless. But considering the context, and so me and my editor Charushi Roy, we sort of worked to figure out whether if we trim those few scenes, is it going to affect the film. And I do believe that if I had felt that it was really adversely affecting the film, I would not have accepted the decision. But I feel that it was okay. And of course, in an ideal scenario, one would not have wanted it. But I think it's okay. They've not asked us to remove any scene and there are only 2 cuss words that they've asked us to sort of mute. But you can actually see them when they mouth the words, so it's fine. And yeah, so I feel overall, I felt that at least with the FCAT, we were dealing with a body that was completely on the same page as us. Yeah, there was some communication. I mean, it was like a dialogue. They were interested in what we had to say. They sat across the table and spoke to us, which is entirely different from how the situation is at CBFC. So, and of course, nobody really wants to go to court and all of that if it's not required. And I really did feel that just muting of 2 cuss words and removing 10 seconds of making out is not reason enough for me to go to court. If I had felt that it's really like something that I can't bear, we would have taken the decision to go to court. So I must say that I'm very happy, because I feel the soul of the film is the same, the texture is the same, all the sex scenes are in the film, and I am now waiting for people to finally watch the film. It's been quite a journey. I feel like I've been pregnant with a child, and like the head is bobbing out, and nothing else of the body has sort of come out, and I'm just kind of carrying around this baby, and it's not emerging. So I think it's time for my labor pains to end. हमने यही मांगा था, हमने शुरू से ये मांगा था, हमें पता है कि मतलब क्योंकि जिस तरह की थीम थी और जिस तरह की बात की गई थी वो एडल्ट्स को ही देखनी चाहिए। और जो FCAT ने, CBFC ने तो हमें साफ मना कर दिया था, कहा हम देंगे ही नहीं सर्टिफिकेट, आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे, कोई बात ही नहीं की उन्होंने। जब अलंकृता ने उनसे कुछ मुंह खोला कि कौन से कट एंड कट्स नहीं, हम देंगे ही नहीं सर्टिफिकेट आपको, तो ये कमाल की स्थिति थी। उसके बाद उन्होंने जो लिखा था तो उसके मतलब बराबरी में देखें तो FCAT ने हमारी बात सुनी, फिल्म को देखा, अप्रिशिएट किया, और इवेंचुअली हमें थोड़ा सा कुछ सीन्स के कुछ सेकंड्स काटने को और 1-2 वर्ड्स, वो निर्णय मैंने अलंकृता के ऊपर छोड़ा था कि आप देख करके बताओ, अगर आपको आपकी फिल्म में कोई जाति कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। उन्होंने देखा और कल ही डिसीजन आया था, कल ही रात को इन्होंने कुछ
2:53 के ऊपर में मुझे एक मैसेज भेजा, जो मैंने सुबह देखा कि नहीं, मैं कट्स कर सकती हूँ और आई एम ओके विथ इट। तो हमने निर्णय लिया कि भाई अब हम लोगों को बता दें कि हमें मान्य है एफकैट का निर्णय और हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। लड़ते अगर ये संतुष्ट नहीं होती और मुझे कहती तुम बताओ हमने कहा था कि नहीं, कल तुमको निर्णय तुम्हारा होगा, तुम संतुष्ट नहीं होगी तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं बिल्कुल योद्धा हैं आप तो सर। क्यों, इसमें योद्धा की क्या बात है? अपनी बात है, अपनी सच्चाई है और उसको पाने के लिए जहाँ तक जाना है वहाँ तक। तो कोई पहली बार थोड़ी एफकैट में ये 4थी बार गया हूँ मैं। किसको सच बात कहने की फ्रीडम है? आपको है? आपको है? आपको है? हम सब उस सच को बोलते हैं जो दूसरों को ऑफेंड ना करे। हम सब सच बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो फिर फिल्म मेकर्स को क्यों इस बीच में समेटते हो? हम लोग तो बड़ी मुश्किल से लड़ते हैं, आज से नहीं हमेशा से। बड़े बचा करके हम अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, खास करके जिस तरह की फिल्में हम बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम खड़े रहते हैं, हम कुछ न कुछ अच्छी बात कहने की कोशिश करते हैं। ये तो बड़ी मूलभूत बात थी। लिपस्टिक अंडर माय बुरखा के अंदर में कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी। हाँ, जेंडर इक्वालिटी की पॉलिटिक्स जरूर थी इसमें और बड़े बेबाकी से की गई है उसकी बातचीत, और तभी जाकर के लगती है, दिल में लगती है। कोई भाषणबाजी नहीं है। हंसते खेलते ह्यूमर में ये सारी बातें निकल करके आती हैं कि मतलब किस हालात में, कितने संकीर्णता में हम औरतें, जो समाज की औरतें हैं, वो कैसे जीती हैं, कैसे सोचती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी माँ क्या सोचती होगी, मेरी बहन क्या सोचती होगी, ये लड़की क्या सोचती है। आप सोच भी सकते हैं कि वो हमेशा हर पल दूसरों के नजरिए से अपनी जिंदगी जीती है। हर पल बाप है, भाई है, दोस्त है, सड़क का आदमी है, नजर मारने वाला आदमी है, कुछ न कुछ जो है, उसी के नजरिए से वो अपनी जिंदगी जीती है। तो इसको तो बदलना पड़ेगा। हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आदमी तो जेंडर इक्वालिटी देने से रहा, वो तो नहीं देने वाला। सीबीएफसी के सिस्टम को कैसे बदलेंगे सर? बदलेंगे, ऐसे ही बदलेंगे। ये चलते रहेगा, इसी तरह से लड़ाई चलती रहेगी, इसी तरह से बात होती रहेगी, ऐसे ही बदलेगा। और आपको आशा है कि सीबीएफसी का सिस्टम बदल पाएगा? श्याम बेनेगल जी की वो भी जा चुके हैं, उसका अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि कब वो... अभी आशा पे थोड़ी जी रहा हूं, मैं तो विश्वास पे जीता हूं। मुझे विश्वास है कि बदलेगा। मैं व्यक्ति के ऊपर में बात नहीं कर रहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की आज की बात नहीं है। ये हमेशा रही है। ऐसा नहीं कि इनके आने की वजह से हो गई। जब मैंने राजनीति बनाई थी तब कौन थे? जब आरक्षण बनाई थी तब कौन थे? जब चक्रव्यूह बनाई थी तब कौन थे? तो किसी व्यक्ति पे दोष न, ये अधिकार की बात है कि जैसे ही आप गाइडलाइन बनाते हैं और किसी को अधिकार दे देते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करो, तो उस गाइडलाइन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। कोई थोड़ा लिबरल करेगा, कोई थोड़ा कंजर्वेटिव करेगा, कोई थोड़ा स्क्यूड तरीके से करेगा, कोई भी करेगा। लेकिन जब भी किसी आदमी को या किसी आदमी के समूह को आप अधिकार देंगे तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा ही होगा। तो वही होता है और उसकी वजह से इसलिए इस अधिकार को ही खत्म कर देना चाहिए, सेंसरशिप के प्रोसेस को ही खत्म कर देना चाहिए और क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को लागू करना चाहिए, और इसकी बात हम करते रहेंगे। सर आप बनना चाहेंगे कभी सीबीएफसी के अध्यक्ष? मैं आपके माध्यम से नहीं बताना चाहता कि मैं क्या क्या बनना चाहूँगा। मेरी वाकई बहुत चीज़ बनने की इच्छा है। हवाई जहाज़ के पायलट बनने की, और एक विश्व का
शानदार पियानो प्लेयर बनने की इच्छा है, और बहुत सारी इच्छाएं हैं मेरी। मैंने कहा ना, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं। अब इसकी प्रायोरिटी कहाँ होगी, कहाँ नहीं। देखो, ऐसा है कि हम बनेंगे तो हम अपनी तरह से इंटरप्रेट करना शुरू करेंगे। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हम बनेंगे तो सब ठीक कर देंगे। हमारी अपनी सोच होगी उसकी तरफ से, इसलिए हमें बनाओ ही मत, हमें अधिकार ही मत दो ना। वो कोई हमारे रूप में कोई नया जो है टॉर्चर करने वाला आदमी आ गया तो क्या करोगे तुम। इसलिए वो किसी को भी वो अधिकार दो ही मत, वो निकाल ही दो उस चीज को। So what do you think is another alternative? सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल है ना, कि आप ये देख के निर्णय करो कि भाई ये किस वर्ग के लोग देखेंगे, कि भाई एडल्ट देखेंगे या 15 साल के बच्चे देखेंगे या 12 साल के बच्चे देखेंगे, या इसको सब देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन कर दो, बात खत्म हो गई। इस देश के एडल्ट को आपने देश की सरकार चुनने का अधिकार दिया है, अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया है। एक फिल्म देखने का भी अधिकार दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो सेंसर बोर्ड के साथ में पहले समझौता कर लेता हूँ ना, उनको पहले से गाइडेंस दे देता हूँ कि देखो हमारी फिल्म आ रही है, अब तुम इसको ऐसा करना, तुम तैयार हो जाओ, इसको तुम ऐसे इसको रिजेक्ट कर देना, इसमें गलत कुछ कमेंट कर देना, इससे सब कर देना, उसके बाद मैं इसकी पब्लिसिटी करूँगा। ये मेरा सेंसर बोर्ड के साथ, आपका कहने का मतलब यही है कि सेंसर बोर्ड के साथ मेरा ये सेटिंग है। हाँ। लोग देखो, मैं जिन विषयों पे करता हूँ फिल्म, क्या होता है कि लोगों को आशंका रहती है कि पता नहीं इसने क्या कह दिया होगा। राजनीति बनाया तो कांग्रेस वालों को आशंका हो गई कि सोनिया गांधी का कैरेक्टर पता नहीं क्या किया होगा इन्होंने, करेक्ट। अब वो सारे लोग परेशान हो गए, भाई सर्टिफिकेट मत दो इसको, एडल्ट सर्टिफिकेट दे दो, ये काट दो, वो काट दो, बहुत सारी चीजें उन्होंने की आशंका में। मैं गया एफकैट में पिक्चर क्लियर हो गई, कुछ नहीं कटा। पिक्चर रिलीज हुई, कांग्रेस भी खुश, दूसरे भी खुश, सब खुश, सारी जनता खुश। सर प्रोमो तो वैसे ही काटा था। आरक्षण में क्या हुआ कि यहाँ हम लोग ऑफिस में बैठे थे, यहाँ वो अठावले साहब के लोग आकर के पत्थर चला रहे थे, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई, मायावती ने फिल्म बैन कर दी, पंजाब में फिल्म बैन हो गई, पता नहीं क्या क्या हुआ आरक्षण में, कि लोगों को आशंका हो गई कि किस समाज को इन्होंने उल्टा सीधा कर दिया होगा। पिक्चर रिलीज हो गई तो रामदास अठावले साहब फूलों का गुलदस्ता लेके आए हमारे पास, साहब आपने तो बड़ा अच्छा किया। हमने कहा क्या कहें, आशंकाओं में लोग परेशान रहते हैं मेरी फिल्म पर। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि पब्लिसिटी वो चाहते हैं या मैं चाहता हूँ। We went to the revising committee. Revising committee में तो पलाश नीलानी साहब थे जिन्होंने कि वो लेडी ओरिएंटेड वाला। No, lady oriented was examining. Revising committee is when he told me straight away he is not certified. हाँ, उन्होंने कहा कि I met him at the revising committee screening. सर क्या आशा victory sign show करना? Like lot of stress, anger.